Welcome students to the history class. We are in the third chapter, which is called an empire across three continents. Basically Roman Empire, that is what we are learning all about. But today, before I proceed further, and I told you in the very first class that this is somewhat a difficult chapter for you because you do not have much idea about this empire and this European history, because you have not heard much about this empire in junior classes. This has not been in your course. Okay, so let me revise, let us summarize what we have learned till now. Okay, so why this heading, an empire across three continents? We'll try and understand this chapter, the first part of this chapter, through these different terms that we are seeing here, and we discuss because they appear in your chapter, so you must understand what they are. Okay. So first we need to understand the meaning of this an empire across three continents, and why we call it. We'll have to know its location. So where it is located, what part was in the Roman Empire. What we know is it was around the Mediterranean Sea. Okay, so river Danube and river Rhine. Okay, from Europe. So three continents which we are talking about are Europe. Okay, so European continent was part of this, not the entire Europe, but yes, Europe was part of this Roman Empire. Second, we see North Africa. So Africa also, Europe also, okay. And third, Asia. But which part of Asia? We call that Fertile Crescent. Now this word has appeared this word has appeared in your chapter. What we mean by Fertile Crescent is, if you go back to the second chapter when we were learning about Mesopotamia में हमने पढ़ा था कि वो जो fertile land था वहाँ पर all around these rivers, Euphrates and Tigris के आसपास का जो इराक का area है, and that entire area, because it is in the shape of crescent, we call this fertile crescent. जैसे हम northern plains कहते हैं इंडिया में, बहुत fertile plain है वो, वैसे ही ये भी बहुत fertile था. Northern plain is fertile because of rivers like Ganga and Yamuna and other rivers. Similarly, this was also fertile because of Euphrates and Tigris. तो ये वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का रीजन, उसे हम क्रिसेंट, फर्टाइल क्रिसेंट कहते हैं. तो वो भी इसका पार्ट था. बेसिकली वो फर्टाइल क्रिसेंट है किस कॉन्टिनेंट का पार्ट? अगर हम देखें तो इसमें एशिया. ओके, तो फर्स्टली व्हाई थ्री कॉन्टिनेंट्स? बिकॉज some part of Europe, some part of Africa and some part of Asia. इन तीनों के ही पार्ट इसमें शामिल थे. That is why we call Roman Empire as an empire across three continents. Okay, so I am sure you understand this. Fertile Crescent किस लिए ये ऐड किया गया है? Okay, ये एशिया का वो पार्ट है जहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, जहाँ पर रिवर टिग्रिस एंड रिवर यूफ्रेट्स फ्लो करती थी, एंड ये बहुत फर्टाइल एरिया थी. You have learned this in chapter 2, Mesopotamia civilization में हम ये पढ़ चुके हैं. तो ये एरियाज थे. लेकिन यूरोप में कहाँ तक जाता था? तो यूरोप में इनिशियली ऑब्वियसली कोई भी अगर एम्पायर है जिसका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, ओके, अगर हम बात करें तो 27 BCE, 27 BCE में स्टार्ट होता है रोमन एम्पायर, जब Augustus, he became the first emperor. So first ruler was Augustus. Okay, and Augustus, before he became the emperor, he was known by the name Octavian, and he was the adopted son of Julius Caesar, who was the general. Okay, but before this empire was set up, before Augustus, he set up this Roman Empire in 27 BCE. उससे पहले वहाँ क्या था? उससे पहले Rome obviously was ruled. It was a republic. Okay.
So people participated in that. There was a body of people, not single person, not one emperor. There was a body of people. Okay, एक संस्था थी जिसमें लोग थे. ये लोग अक्सर अरिस्टोक्रेसी के लोग थे, ये वेल्दी लोग थे, और इनकी जो बॉडी थी that was called Senate. तो बिफोर 27 BCE रोमन के एम्पायर बनने से पहले, एम्पायर हम उसे कहते हैं जहाँ पे एक सिंगल रूलर होता है, एम्परर रूल करता है. ओके, तो एम्परर से वर्ड बना है एम्पायर. लेकिन जब एम्परर नहीं था तब रोम वाज रूल्ड थ्रू सेनेट, एंड सेनेट वाज ए बॉडी ऑफ पीपल जिसमें के अरिस्टोक्रेट्स थे. तो अरिस्टोक्रेसी का ग्रुप था सेनेट. ओके, और ये ग्रुप, दिस ग्रुप ऑफ पीपल यूज्ड टू रूल रोम, एंड तब रोम था रिपब्लिक. लेकिन 27 BC के बाद हम इसे रिपब्लिक नहीं कहेंगे, इट सीज्ड टू बी अ रिपब्लिक. यस, इसका इनिशियली जो नेम है वो था प्रिंसिपेट. ओके, दिस इसको बुलाया जाने लगा प्रिंसिपेट. एंड प्रिंसेप जो वर्ड है लैटिन में, उसका मतलब है फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, फर्स्ट सिटीजन. ओके, तो एम्परर को जबकि सारा पावर अगस्टस के पास था, लेकिन सेनेट की रिस्पेक्ट बनी रहे. लोगों के सामने तुरंत एक नया सिस्टम आ रहा है, तो ये ट्रांजिशन में प्रॉब्लम नहीं आए. अचानक लोगों को बता देना कि सेनेट खत्म हो गया है और एक सिंगल पावरफुल रूलर आ गया है, वही सारे नेशंस लेंगे, ये सब न हो. इसलिए उसको प्रिंसिपेट बुलाया जाने लगा कि ये एम्परर नहीं है, ये प्रिंसिपेट है, ये फर्स्ट सिटीजन है, और सेनेट और ये मिलकर चलाते हैं रोमन एम्पायर को. बट एक्चुअली ही वाज द होल एंड सोल अथॉरिटी. सारा पावर अगस्टस के पास था. ये सेनेट भी उस समय बना रहा, उसको टोटली खत्म नहीं किया गया. ओके, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट रिपब्लिक वाज. रिपब्लिक बिफोर 27 BCE का पीरियड, ये भी एक लंबा दौर है. ये भी अराउंड 500 ईयर्स तक वहाँ पर रिपब्लिक का सिस्टम था वहाँ पर, बिफोर द कमिंग ऑफ रोमन एम्पायर. ना रोमन एम्पायर के दो पीरियड हैं. 27 BCE से लेकर ये अराउंड 3rd सेंचुरी, okay, till 3rd century, this is the early period. After 3rd century and लास्ट जो स्टेज है दैट इज 630 CE. सो बेसिकली रोमन एम्पायर का जो पीरियड है, जो तुम्हें याद रखना है, वो है 27 BCE to 630 CE. ओके, CE and BCE you understand. इसे कॉमन एरा या क्रिश्चियन एरा कहते हैं. क्राइस्ट के जन्म से 27 साल पहले रोमन एम्पायर की नींव लग चुकी थी, और क्राइस्ट के जन्म के 630 ईयर्स बाद तक ये रोमन एम्पायर चला. उसके दो फेज है, एक अर्ली फेज है और एक लेटर फेज है. इसमें डिफरेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में डिफरेंस है. इनफैक्ट रोमन एम्पायर बाद में जाके डिवाइड होता है, दैट वी विल लर्न. ओके, सो ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास ये उसका एरिया था, यहाँ पर एक रोमन एम्पायर था. एक्सेप्ट फॉर इटली, ओके, अदर्स वर नोन एज प्रोविंसेस. इटली को अगर इसमें से निकाल दिया जाए, क्योंकि इटली तो यहीं पर रोम है, यही पावर का सेंटर था, तो इटली को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी प्रोविंसेस थे, एंड ऑल यूज्ड टू उन्हें टैक्स देना होता था. ओके, कोई भी एम्पायर तभी चल पाएगा जब गवर्नेंस के लिए पैसा कहीं से आए, और पैसा ऑब्वियसली आता था थ्रू टैक्सेशन. सो ऑल प्रोविंसेस वर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन एक्सेप्ट इटली. इटली उस समय प्रोविंस नहीं था, वेयरएज ऑल अदर वर कंसिडर्ड प्रोविंसेस. ओके, इसका डिटेल के हम कैसे ये गवर्न होते थे सिटीज, वो हम अर्बनाइजेशन में पढ़ेंगे. सो आई एम श्योर नाउ वी आर क्लियर अबाउट दिस अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट. इसकी लोकेशन कहाँ है, रिपब्लिक क्या है, सेनेट क्या है, लेटर एम्पायर एंड अर्ली एम्पायर, एम्पायर वर्सेस रिपब्लिक, दैट आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड. इफ यू आर
देखिए रिपब्लिक का सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर ऑब्वियसली सेनेट रूल करती है, जहाँ पे कई लोग मिलकर उसे चलाते हैं। बेसिकली इन टुडेज कंटेक्स्ट रिपब्लिक हम उसे कहते हैं वेयर हेड ऑफ द स्टेट, जो भी हेड है उसे चुना जाता हो, वो हेरिडिटरी पोस्ट नहीं हो, वहाँ पर कोई एम्परर नहीं हो, तो फिर वो रिपब्लिक होता है। सो इंडिया टुडे इज इन टुडेज टाइम्स इंडिया विल बी कंसिडर्ड अ रिपब्लिक। ओके, so from after this we come to few more topics, that is Roman army. How was the Roman army? Roman army was a professional army. Okay, professional, paid army. ये प्रोफेशनल और पेड आर्मी थी। ओके, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो ये 6 लाख तक इसमें सोल्जर्स हुआ करते थे। ओके, सो इट वाज अ वेरी बिग आर्मी, इट वाज अ पेड आर्मी, इट वाज ए प्रोफेशनल आर्मी। अगर उसी समय के कंटेम्प्रेरी एम्पायर की बात करें, जो कि ईरानियन एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर जिसे हम कहते हैं, उनकी जो आर्मी थी वो कंस्क्रिप्टेड थी। कंस्क्रिप्टेड का मतलब है कि उसमें फोर्सिबली लोगों को रिक्रूट किया गया था, लेकिन यहाँ पे फोर्सिबली रिक्रूट नहीं किया गया था। यहाँ पर एक प्रोफेशनल और पेड आर्मी थी। एवरी सोल्जर हैड टू पुट इन 25 इयर्स ऑफ सर्विस, उसे मिनिमम 25 इयर्स सर्विस में गुजारने पड़ते थे। ओके, तो एक प्रोफेशनल जैसे अभी होते हैं पेड आर्मी थी। इसका एक नुकसान भी था, समटाइम्स दे यूज टू एजिटेट, नाराज हो जाते थे और नाराजगी होती थी कि कम पैसा मिल रहा है या कंडीशंस ठीक नहीं है। ओके, समटाइम्स दे आल्सो यूज टू रिवोल्ट, म्यूटिनी में म्यूटिनी हो जाया करती थी। ओके, सो दैट इज अबाउट द आर्मी एंड दिस वाज द मेन थिंग। ओके, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आर्मी का। 3 प्लेयर्स इफ आई वुड से, ये डिस्कस्ड है आपके चैप्टर में। 3 प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स कौन थे जो कि इस रोमन एम्पायर को चलाते थे? वन वाज एम्परर, सेनेट एंड आर्मी। ओके, सो these 3 basically, okay, these basically 3, अगर किसी भी एम्परर को एक अच्छा एम्परर बनना है, इफेक्टिवली रूल करना है, तो उसको सेनेट का आर्मी का सपोर्ट होना जरूरी था। एम्परर की मेन स्ट्रेंथ, वो सिंगल हैंडेडली क्या कर सकता है, बट उसके पास आर्मी का सपोर्ट रहता था एंड आर्मी के थ्रू वो बेसिकली रूल करता था। सेनेट इनकी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं थी, आर्मी से ये डरते भी थे। ओके, दे यूज्ड टू हेट द आर्मी and they were afraid of the army as well. Okay, so these are the few things that we understand. There is also one word which comes and it is called Near East. Near East. Okay, so Near East is Afghanistan, Iraq and Iran, this area. अगर हम मेडिटेरियन सी के पास हैं, अगर हम रोम में हैं, तो हमारा जो नियर ईस्ट में जो पास जगह होगी उसे हम नियर ईस्ट कहा गया है। ओके, सो दिस नियर ईस्ट ऑब्वियसली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नियर ईस्ट हम उसको देखेंगे एंड यहाँ से भी ये लोग ट्रेड वगैरह किया करते थे। तो दीज आर फ्यू टर्म्स दैट हैव कम इन योर चैप्टर्स। ओके, लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहता था, यहाँ बहुत डाइवर्स कल्चर था। अगर ये 3 कॉन्टिनेंट्स में है तो नॉर्थन अफ्रीका का कल्चर, वहाँ के फूड हैबिट्स, वहाँ के रिलीजन, वहाँ के प्रैक्टिसेस, ऑल दोस थिंग्स वर डिफरेंट। ओके, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल यूज्ड टू प्रैक्टिस इन यूरोप एंड वी सी ईस्टर्न कल्चर इज डिफरेंट। सो दिस दे गॉट अ डाइवर्स कल्चर। लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग तरह के उनके फेस्टिवल्स हैं। इन सबको एक रूल करना बहुत मुश्किल होता होगा, बट दे इम्पॉर्टेंट थिंग इन रोमन एम्पायर वाज दैट देयर वाज सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सब जगह पर एक ही तरीके से रूल किया जाता था। ओके, तो सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक सिंगल रूलर होता था, सिंगल एम्परर, सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रोमन एम्पायर की।
ये बहुत बड़ी खूबी थी, यही खासियत थी जिसकी वजह से वो इतने बड़े एम्पायर को रूल कर पाए। ओके, यहाँ पर जो लैंग्वेजेस थी, हर जगह ऑब्वियसली अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी, कल्चर अगर अलग है, डाइवर्स है, अलग अलग एरियाज है, वी आर सीइंग दिस 3 कॉन्टिनेंट्स के पार्ट इसमें एडेड है, तो फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस भी होंगी। बट द लैंग्वेज फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, सारा जो सरकारी काम होता है जैसे हम कहते हैं, ऑल ऑफिशियल वर्क, वो केवल 2 ही लैंग्वेज में होता था, ग्रीक एंड लैटिन। ग्रीक एंड लैटिन भी अगर उससे भी अगर हम डिवाइड करें तो जो रोम मेन सेंटर है इटली का, क्योंकि जहाँ से ये रोमन एम्पायर कंट्रोल होता था, वहाँ पर लैटिन ज़्यादा बोली जाती थी। एंड यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है, इनफैक्ट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, वहाँ पर लैटिन ज़्यादा बोली जाती थी। ओके, सो दीज आर let me clear that if I have confused you a bit. Many languages were spoken in the empire, but for the purpose of administration. We are not saying कि कोई और लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी, सब यही लैंग्वेज बोलते थे। लैंग्वेजेस अलग अलग बोली जाती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए only 2 languages were used, and those were Latin and Greek, the upper classes of the East. Okay, और ये दोनों ही जो लैंग्वेजेस हैं ग्रीक एंड लैटिन, ये अपर क्लासेस बोलते थे। फ़र्क इतना है कि ईस्ट में रहने वाले जो अपर क्लासेस हैं, दे स्पोक एंड रोट इन ग्रीक, ओके, एंड दोज ऑफ द वेस्ट दे स्पोक इन लैटिन। तो जो वेस्टर्न इलाका है यूरोप का, वहाँ पर लैटिन बोली जाती थी, एंड ये जो रोम एंड ऑल जो एरिया है, विच इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो ग्रीक बोली जाती थी। तो दोनों लैंग्वेज यूज होती थी, दोनों ही एरिया के लोग यहाँ पर शामिल हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। बोथ लैंग्वेजेस वर यूज्ड, सो देयर वाज इंडीड द ओनली लैंग्वेजेस। इस रोमन एम्पायर को कंट्रोल एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करता था, और इन्हीं 2 लैंग्वेजेस का वहाँ पर यूज होता था। So these are basically you need to remember this before we really move further, because these are important aspects of the empire. Senate hated and feared the army that we have discussed. I'm sure all these things. Now we will move further. After Augustus, obviously it was Tiberius who came and ruled. Tiberius was also not the real son of Augustus, he was the adopted son of Augustus. Okay, and slowly the empire started expanding, and इनका जो rule है, it stretched all the way to Scotland. Scotland अभी ब्रिटेन में है, so you can imagine कि ब्रिटेन वहाँ तक इनका rule था। and अगर हम ईस्टर्न साइड में देखें तो आर्मेनिया, वहाँ तक इनका rule जाता था। The Near East was full of such kingdoms, इसमें बहुत सारी kingdoms शामिल नहीं, but by the early 2nd centuries, those which lay west of the Euphrates had disappeared, swallowed up by the Roman Empire. So Roman Empire, it expanded all the way to Scotland, all the way to Armenians, and इधर जो Near East and Far East तक ये फैल चुका था। Okay, so some of the kingdoms were extremely wealthy, कुछ kingdoms इसमें बहुत wealthy थे, and provinces मैंने समझाया कि सभी provinces थे, सभी में taxation system चलता था, सभी को टैक्स देना पड़ता था। All the territories of the empire were organized into provinces and subjected to taxation। और जब पीक पे आया 2nd सेंचुरी पर रोमन एम्पायर, तो वहाँ पर इसका जो स्ट्रेच हो गया, स्कॉटलैंड मैंने बताया, to the borders of Armenia. Okay, so on one side it was Scotland, on the other side it was Armenia. So Scotland से लेकर all the way to Armenia, okay, इनका रूल था। इधर नॉर्थ अफ्रीका तक, यहाँ पर हम देख रहे हैं बियॉन्ड यूफ्रेट्स जो किंगडम्स वगैरह थे वो भी इसमें शामिल हो चुके थे। And stretched from Scotland to the borders of Armenia, and from Sahara to the Euphrates and sometimes beyond Euphrates. So
So given that there was no government in the modern sense to help them run things, अब ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी है कि इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इतने डिफरेंट कल्चर्स, इतने ज़्यादा लोग, 60 मिलियन लोग, इनको इतना रूल करना, इट वाज नॉट इजी। फिर